السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN اور میں ہوں ابراہیم پیرکا۔ میں ہوں منزلہ زیشان۔ بلیٹن میں ہمارے ساتھ ہوں گی حفصہ آصف بھی۔ ناظرین، بھارت کو شکست فاش دینے پر حکومت نے جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پوری قوم کو مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیانم مرصوص میں شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت سے ملاقات کر کے انہیں اس فیصلے پر اعتماد میں لیا۔ اور حکومت نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت پوری ہونے پر ان کی خدمات کو جاری رکھنے کا متفقہ فیصلہ کیا ہے۔ افواج پاکستان کے افسروں، جوانوں، غازیوں، شہداء اور شہریوں کو گراں قدر خدمات کے اعتراف میں سول سرکاری اور اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ اپنے ناظرین کو خبر دے رہے ہیں، بھارت کو شکست فاش دینے پر حکومت نے جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ شہباز حکومت کا ایک اور تاریخی فیصلہ، دشمن کو شکست فاش دینے پر آرمی چیف سید عاصم منیر کی فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو مدت ملازمت میں توسیع دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس ہوا، جس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ وفاقی کابینہ کا کہنا ہے کہ 6 اور 7 مئی 2025 کی رات بھارت نے پاکستان پر بلا اشتعال اور بلا جواز جنگ مسلط۔ کابینہ کا کہنا تھا آرمی چیف سید عاصم منیر نے مثالی جرأت اور عزم کے ساتھ پاک فوج کی قیادت کی اور مسلح افواج کی جنگی حکمت عملی اور کاوشوں کو بھرپور طریقے سے ہم آہنگ کیا۔ آرمی چیف کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو مارکہ حق میں تاریخی کامیابی حاصل ہوئی۔ شاندار عسکری قیادت، جرأت اور بہادری پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنانے اور دشمن کے مقابلے میں دلیرانہ دفاع کے اعتراف میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی وزیر اعظم کی تجویز کابینہ نے منظور کر لی۔ وفاقی کابینہ نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت پوری ہونے پر ان کی خدمات کو جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ افواج پاکستان کے افسران اور جوان، غازیان، شہداء اور پاکستانی شہریوں کو آپریشن بنیان مرصوص کے دوران ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ وزیر اعظم نے صدر زرداری سے ملاقات کر کے انہیں اس فیصلے کے حوالے سے اعتماد میں لیا۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ یہ اعزاز پوری قوم افواج پاکستان، خاص کر سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد کا شکر گزار ہوں۔ یہ اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قوم کا شکریہ ادا کیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بننے پر مبارکباد۔ کہا دشمن کو شکست فاش دینے پر سپہ سالار پاکستان جنرل سید عاصم منیر اس عہدے کے اصل حقدار ہیں۔ آپریشن بنیانم مرصوص میں ان کی اعلیٰ حکمت عملی اور قیادت ان کی غیر معمولی عسکری صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو، جو کہ ایک فاتح سپہ سالار ہیں، فیلڈ مارشل بننے پر دلی مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ وہ فیصلہ ہے جس سے پوری قوم کی ترجمانی ہوئی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان میں پاکستانیز اور اوورسیز پاکستانیز کے دل میں ایک ہی شخص جس نے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے، وہ جنرل حافظ عاصم منیر ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک جنگ نہیں لڑی، انہوں نے 2 جنگیں لڑی۔ ایک اندرونی سازش اور دہشت گردی کی جو پاکستان کے اندر تھی، اور دوسری بھارت سے جنگ لڑی۔ اور یہ صرف اسلحے کی جنگ نہیں تھی، انہوں نے ایک اصحاب کی جنگ لڑی، اور میں سمجھتا ہوں اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ آگے بڑھتے آپ کو بتائیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ زی سے ملاقات میں جنوبی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک چین دوستی کے مستقبل اور سی پیک فیز 2 پر بھی غور کیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ زی سے ملاقات ہوئی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اعجاز احمد سے بھی تفصیلات جانیں گے۔ تو آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ زی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں جنوبی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پاک چین دوستی کے مستقبل اور سی پیک فیز 2 پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ زی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں
जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। पाक चीन दोस्ती के मुस्तकबिल और सी पैक फेज़ 2 पर भी तबादला ख्याल किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज, बताएगा इस मुलाकात से मुताल्लिक। जी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार जो डिप्टी वज़ीर आज़म भी हैं आजकल चीन के दौरे पर हैं। उन्होंने अपने दौरे के दूसरे रोज चीनी हम मनसब के साथ मुलाकात की। वांग यी के साथ होने वाली इस मुलाकात में पाक चीन दोस्ती की गहराई और पाक चीन दोस्ती की बुलंदी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया और उस पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। मुलाकात में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफ़ा ताउन, ख़ास तौर पर खित्ते की मौजूदा बदलती हुई सूरत हाल में दो तरफ़ा ताउन के साथ साथ सी पैक 2 पर भी तफसीली मुशावरत की गई। जी ठीक है एजाज अहमद, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के उमूर और जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR की डिजिटाइजेशन और निज़ाम को खुदकार बनाने के लिए इक़दामात तेज़ी से जारी हैं। 70 बरस के बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इक़दामात ज़रूरी हैं। और टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार किसी किस्म की रियायत की मुस्तहिक नहीं है। टैक्स देने वाले अफराद और कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देंगे। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोलियम लेवी की मद में एक और बोझ अवाम पर डालने की तैयारी कर ली गई है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 100 रुपये फ़ी लीटर किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करा दी है। लेवी बढ़ाने से सार्फिन पर 194 अरब रुपए का इजाफी बोझ भी पड़ेगा। दूसरी जानिब मालियाती इदारे ने इलाकाई कशीदगी और अमरीकी इजाफी टैरिफ से मईशत पर मनफी असरात का खदशा जाहिर किया है। कर्ज प्रोग्राम के आइंदा अक़साद के लिए शराइत मजीद सख्त करते हुए टैक्स आमदन बढ़ाने और अखराजात महदूद करने का भी मुतालबा किया गया है। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ मुज़ाकरात ने 5 रुपये कार्बन लीवी आयद करना भी तय पाया है। और बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत कल सुबह से दोबारा शुरू होगी। इससे कबल मुकदमे की अडयाला जेल में आखिरी समाअत 17 फरवरी को हुई। इसी हवाले से मज़ीद डिटेल्स देने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब, बताइएगा इससे मुतालिक कल दोबारा समाअत होने जा रही है। जी, अदालती राय ने यही बताया है कि अदाला जेल में कल तोशाखाना 2 केस की समाअत दोबारा से शुरू होगी। तोशाखाना 2 केस की समाअत इससे पहले फरवरी में हुई थी अदाला जेल में, जिसके बाद कुछ चूँकि आला अदलिया में तब्दीली आ रही थी, जिसकी बिना पर यह मौखर की गई थी और बाद में जज अर्जुमंद शाहीन अपनी मसरूफियात के बायस और छुट्टी पर जाने के बायस ये समाअत नहीं कर सके थे। और अब आज अदालती राय ने इस बात की तस्दीक की है कि कल सुबह 10 बजे से तोशाखाना 2 केस की अदाला जेल में दोबारा समाअत शुरू होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारी पहली तरजीह अमन है। पहले भी कहा और अब भी कहता हूँ कि हमें ज़िंदगी से ज़्यादा शहादत की आरजू है। PJSPR लेफ्टिनेंट जनरल का चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तानी कौम पहले झुकी थी और ना ही अब झुकेगी। पाकिस्तान की गलियों में आपको लोग फतह नहीं अमन की खुशी मनाते नजर आएंगे। मजीद कहा, दुनिया को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं कि ऐसे में एक मुल्क दूसरे मुल्क पर बिला जवाब बगैर सबूत चढ़ाई कर सकता है। क्या कोई पड़ोसी ममालिक के ऊपर अपनी अजादारी मुसल्लत कर सकता है? बोले, पाकिस्तान और चीन दो जिम्मेदार मुल्क हैं और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कातिल केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफर की अपील मुस्तरद कर दी है। सजाए मौत बरकरार रखने का हुक्म दिया गया है। ज़्यादती की दफात में सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। अगवा के मुकदमे में 10 साल सजा कम करके 1 साल कर दी गई। नूर मुकद्दम के अहले खाना को मुआवजे की अदायगी का हुक्म भी बरकरार रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में अपीलों पर समाअत की। दौरान समाअत मुजरिम ज़ाहिर जाफर के वकील सलमान सफदर अदालत में पेश हुए और दलाइल दिए। कहा कि प्रोसिक्यूशन का सारा केस CCTV फुटेज और DVR पर है। चौकीदार और माली के वकील ने दलाइल में कहा कि माली और चौकीदार की घर में मौजूदगी के अलावा और कोई जुर्म नहीं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, तनख्वाह से ज्यादा काम करने की क्या जरूरत थी। वक्फे के बाद समाअत का दोबारा आगाज हुआ तो नूर मुकद्दम के वकील शाह खावर के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जस्टिस हाशिम काकड़ ने मुख्तसर फैसला सुनाया। अदालत ने ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखी है। ज्यादती की दफात में सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया गया है। अगवा के मुकदमे में 10 साल सजा कम करके 1 साल कर दी गई है, जबकि नूर मुकद्दम के अहले खाना को मुआवजे की अदायगी का हुक्म भी बरकरार रखा गया है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने सरकारी वकील को कहा कि रियासत की तरफ से नौजवानों को लिविंग रिलेशन की तबाहकारियां बताएं। नौजवान नस्ल को आइस के नशे से मुतल्लिक भी आगाह करें। आपको नहीं पता कि यूनिवर्सिटीज में आइस कितनी आसानी से मिलती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चौकीदार और माली ने जितनी सजा काट ली वो काफ़ी है।
मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर समाअत। फैसल सदीकी ने एक बार फिर बेंच पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि चलते हुए केस में कोई वजूहात बयान करके बेंच से अलग तो हो तो मामला अलग होता है। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि कल भी बताया था कि इन दो जजेस की अपनी ख्वाहिश थी कि वो बेंच में नहीं बैठेंगे। फैसल सदीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि इस केस में पहले दिन सब कुछ वक्त के खिलाफ होता आ रहा है। मेरे ख्याल में आप ही इन दो जजेस को दावतनामा भिजवा दें। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा कि आप मुझे अमेरिका का टिकट ले दें, मैं उस जज को अमेरिका से ले आती हूँ। शदीद गर्मी के पेश नज़र पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। औकात-ए-कार को भी मज़ीद कम कर दिया गया। मुल्क भर में अगले 4 रोज़ तक हीट वेव और पारा मज़ीद बढ़ने का खदशा है। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर जारी है। अगले चंद रोज में दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद 4 रोज के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। शदीद गर्मी के बायस स्कूल के औकात कार भी तब्दील कर दिए गए हैं। नए औकात कार 7:30 से 11:30 बजे तक कर दिए गए। आज से 24 मई तक मुल्क के जनूबी इलाके सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में पारा मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहेगा। बालाई इलाकों में 5 से 7 दर्जे ज्यादा गर्मी होगी। मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी गर्मी का राज है। नवाब शाह, लाड़काना और रहीम यार खान का पारा 47 डिग्री से तजावज कर चुका है। उधर 24 मई को भारत के मगरबी साहिल के करीब हवा का कम दबाव बनने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का बताना है कि अगर हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया तो ये समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तूफान की मुमकिना तश्कील के बायस 25 मई से 1 जून तक सिंध, खुसूसन कराची में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के है। समुद्री हवाएं मुनक़ता होने से दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर सकता है। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान सिख मजहब के कई मुक़द्दस मकामात का काबिल फ़ख्र मुहाफ़िज़ है और हर साल दुनिया भर से आने वाले हज़ारों सिख यात्रियों का खैर मकदम भी करता है। अपने नाज़रीन को मनाज़िर दिखाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी उनके हमरा थे वज़ीर आज़म के, और साथ ही साथ वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ भी उनके हमरा मौजूद थे। और बेहतरीन हिकमत अमली पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के हवाले से एतमाद में लिया गया है और उनके काम को सराहा गया है सदर मुमलिकत की जानिब से। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की ईवान सदर में जाकर, और तमाम अमूर पर जो कैबिनेट ने फ़ैसले लिए हैं उस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को एतमाद में लिया है। अहम मुलाकात के ये मनाज़िर दिखा रहे हैं जिसमें वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी भी मौजूद थे।